लेट्स फाइट बयानबाजी। आज सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। यह हमला फोर्डो, नतांज और इस्फहान ठिकानों पर किया गया। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया और कहा, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. इसके बाद अयातुल्ला खमानेई ने अमेरिकी हमलों के बाद कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अमेरिका का युद्ध में प्रवेश करना 100% अपने नुकसान के लिए होगा। The Americans, the ones who are very familiar with the political landscape of this region, they know that America's involvement in this case is 100% to its severe detriment. The extensive damage it will incur within this region will be far greater and more significant than any damage that Iran might possibly suffer. वहीं इस हमले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान सामने आया है। पीयूष ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि युद्ध किसी मुद्दे के समाधान का रास्ता नहीं है। बातचीत और कूटनीति ही वो माध्यम है जिसका इस्तेमाल किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए किया जाना चाहिए। जी शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन विश्व भर में फिर से अमेरिका ने ईरान पर युद्ध किया है, हमला किया है, इजराइल को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे किस देखते हैं शांति प्रस्ताव? माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस सोच के रहे हैं कि युद्ध मार्ग नहीं है समस्याओं के समाधान का। डायलॉग और डिप्लोमेसी
बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने सभी देशों से इस खतरनाक और आपराधिक कार्रवाई पर चिंता जताने की अपील की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला है। एक बयान में एर्दोगान ने नेतन्याहू की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि दोनों ने तबाही का एक जैसा रास्ता चुना है। एर्दोगान का ये बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बेहद गंभीर रूप ले चुका है। This is another fact that should be known. Israel attacked on Gaza, Palestine, Yemen, Syria, and Iran, and all those attacks can be identified as banditry. So within the framework of self-defense, Iran has taken legitimate and lawful precautions in order to protect its own people. Dear brothers and sisters, this is a crystal clear fact. All those invasive policies of Israel violating the international law is serving to the policies of destabilizing the region by Israel. Attacks have been carried out exactly when the Iran's nuclear program negotiations have been intensified. So this is in itself is quite meaningful. And Israel ignores the calls of everyone while enriching its nuclear capacity without abiding by any rules. And this is the greatest hypocrisy displayed by Israel. With the attacks carried out on 13th of June, Netanyahu government aimed at undermining the negotiation process. What happened in Iran showed once again that Netanyahu government and his murderers do not wish any problems to be resolved through diplomatic means. On the other hand, rather than living in harmony and peace with a state of Palestine founded on the basis of 1967 borders with its Al-Quds being its capital, Israel unfortunately tries to disseminate the fire of oppression to the whole region. As Hitler put the whole world into the fire, extending from the Oceania to the whole Europe, the Zionist aims of Netanyahu government dragged the whole world into chaos and instability. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक गंभीर मामला उठाया है। उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि बस्तर पुलिस ने एक सरकारी रसोइये को मुठभेड़ में मारकर नक्सली बता दिया। 10 जून को बस्तर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा था कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 7 माओवादी मारे गए, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन मारे गए महेश कुडियाम के परिजनों का कहना है कि वो माओवादी नहीं, सरकारी रसोइया था और उसके 7 बच्चे हैं। सरकार उसके खाते में हर महीने वेतन भी भेजती थी। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया, ये क्या किया सरकार? अपने ही कर्मचारी को नक्सली बताकर मार दिया या फिर नक्सलियों को वेतन दे रहे थे? गांव वालों ने भी माना कि बाकी 6 लोग माओवादी थे जिन्हें अलग अलग जगहों पर मारा गया। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की नाराजगी के बीच अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी नाराजगी जताई है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट को लेकर कहा कि उन्हें यहां के लोगों ने हमेशा भरपूर प्यार दिया है। उन्होंने बताया कि पिछली बार उन्हें करीब 64,000 वोट मिले थे, जो जनता के समर्थन को दिखाता है। अजहरुद्दीन ने कहा कि हार जीत तो होती रहती है,
लेकिन जुबली हिल्स उनका निर्वाचन क्षेत्र है और वे यहां से फिर चुनाव लड़ेंगे। నేను 100% పోటీలో తప్పకుండా ఉన్నాను. ఈ ఎలక్షన్లో బై ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ 100% గెలుస్తుంది. నేను చెప్తున్నా కదా, నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం. అప్పుడు ఆ ఎలక్షన్ ఓడిపోయింది. ఇది చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు ఇది ఎలక్షన్లో మంచి ఫైట్ చేస్తాం, మంచి కాంగ్రెస్కి నేమ్ ఇస్తాం. నేను చెప్తున్నా కదా मेरे खड़गे साहब के ब्लेसिंग से, राहुल गांधी जी के ब्लेसिंग से, सोनिया मैडम की ब्लेसिंग से, प्रियंका जी की ब्लेसिंग से, और हमारे जो बहुत चहीते चीफ मिनिस्टर है उनके ब्लेसिंग से, और हमारे जो इंचार्ज है मीनाक्षी मैडम, जो मैं उनको काफ़ी ऑलमोस्ट लाइक 20 ईयर्स से जानता हूँ, उनके ब्लेसिंग से इंशाल्लाह हम ये सीट कांग्रेस को जीतेंगे और मैं ज़रूर यहाँ से उम्मीदवार होऊंगा, लड़ूंगा. और ऐसे लोग तो बहुत कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन तो होते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ज़रूर लड़ूंगा. तो देखिए, तो मीडिया में स्पेकुलेशन तो लोग कहते हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लोग इलेक्शन के लिए कोई भी उम्मीदवार के लिए टिकट मांग सकता है और लड़ भी सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है. बट लेकिन जो स्पेकुलेशन जो है वो तो होते ही रहते हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हाईकमांड AICC है, और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मीनाक्षी नटराजन जी एंड हमारे रेवंत रेड्डी साहब से रहेगा, वही होगा. क्योंकि लोग तो कहते रहते, उसके बारे में मैं उतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं. बट लेकिन मैं एक चीज़ फिर से रिट्रेट करूँगा, फिर से कहूँगा कि मैं इंशाल्लाह यहाँ से ज़रूर लड़ूंगा और इंशाल्लाह यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी. क्योंकि हम लास्ट टाइम ने काफ़ी हार्ड वर्क किया था, बट लेकिन सेकेंड प्लेस पे है. बट लेकिन इंशाल्लाह हम ये टाइम फर्स्ट प्लेस पे हैं. लास्ट टाइम भी लाइक काफ़ी कम टाइम था, और उसके बावजूद भी 64,212 वोट आए थे MLA इलेक्शन में. बट लेकिन जब MP इलेक्शन हुआ था, दो या तीन चार महीने के बाद, पूरे सिटी में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा लीड मिली थी, ऑलमोस्ट 89-90,000 के करीब मिली थी. तो इससे ये है कि वोटर्स भी चाहते हैं कि मैं ही वहाँ से लड़ूँ, और मेरे को जितना प्यार और मोहब्बत जुबली हिल्स के लोगों ने दी, वो उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है. और लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है. मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी काम ला रहे हैं लोग, जो भी यहाँ पे डिफिकल्टीज है, स्पेशली मोस्टली सीवेज का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी बारिश होगी, बारिश के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. तो काम तो बहुत हो रहे हैं, मेरा काम ही है काम करना. लेकिन इंशाल्लाह देखिए, पूरी कोशिश होगी कि हम यहाँ से कांग्रेस पार्टी को फिर से जिताएंगे, वो मेरा इंटेंशन है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. पुतिन ने कहा, पूरा यूक्रेन हमारा है. रूस और यूक्रेन के बीच लोग एक जैसे हैं और रूस कभी किसी देश की संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन यूक्रेन से लड़ाई अपनी सुरक्षा के लिए लड़ी जा रही है. पुतिन ने सुमी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने की बात भी कही और यहाँ तक कह डाला, जहाँ रूसी सैनिक पैर रखता है वो इलाका रूस का हो जाता है. उनके इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मच गई है. कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे ने बड़ा बयान दिया है. एक टीवी इंटरव्यू पर अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा, वो खत्म नहीं होगा, हम लोग कोशिश करना है, नैराश्य जीवन में आने नहीं देना. आप निराश नहीं होते? बिल्कुल नहीं. तो अब उम्मीद कहाँ है? नैराश्य होकर क्या करेंगे? ये लोग हमारे भारत के रहने वाले लोग हैं, हम भी भारत के हैं, देश के लोग हैं. नैराश्य किस ले लेना, कोशिश करना है. आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ा है? उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, जागरूक मतदार ये लोकतंत्र का आधार होता है. इसको भूल गए लोग कि मतदार जागरूक होना जरूरी है. जागरूक मतदार लोकतंत्र का आधार है, इसको भूल गए लोग. सत्ता पैसा इसके पीछे दौड़ रहे, नेता भी दौड़ रहे, जनता भी दौड़ रही. इसके कारण देश की हालत हो रही है. फिर भी हम लोग इसको नैराश्य नहीं आने देना, कोशिश करना है. इतना ये सब होने के बाद भी अभी 10 कानून बन गए, नैराश्य नहीं. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.